مرکزی وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے عام بجٹ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس میں تمام طبقوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ مختار عباس نقوی نے کانپور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے عام بجٹ کو سب کے مفادات کا خیال رکھنے والا بجٹ قرار دیا ہے۔ مختار عباس نقوی نے CAA پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی طور پر شکست خوردہ جماعتوں اور لوگوں نے مسلمانوں کو گمراہ کیا تھا اور ٹھیک اسی طرح سے آج کسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نیشنل ہوا تھا نا کہ نیشنل تھا خالی پاکستان سے لے کر کے اور کہاں پہنچ گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی چیزیں انٹرنیشنل ہو چکی ہیں، لیکن جنتا نیشنل ہے۔ جنتا راشٹریہ بھاونا سے سمرپت ہے، راشٹریہ بھاونا کے پرتی سمرپت ہے۔ آندولن کی ہم سمان کرنے والے پارٹی ہے اور اسی لیے ہمارا ایٹیٹیوڈ، اور اس سے پہلے کی جو سرکار تھی، انا ہزارے جی کا آندولن ہوا تھا، کیا ہوا تھا؟ تو ہمارے یہاں ٹاک سے بات ہو رہی ہے، کسی سے کوئی دباؤ نہیں۔ جماعت اسلامی ہند نے مرکزی حکومت کے ذریعے پیش کیے گئے عام بجٹ پر سخت تنقید کی ہے۔ دہلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جماعت اسلامی ہند کے نائب صدر انجینئر محمد سلیم نے کہا کہ بجٹ میں عام لوگوں اور غریبوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ امیروں کا بجٹ ہے۔ انجینئر محمد سلیم نے اقلیتوں کے بجٹ میں کمی کرنے پر بھی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتی ملک میں 21% ہے تو ان کے بجٹ میں تخفیف کی گئی، جبکہ شیڈول کاسٹ جن کی آبادی 16% ہے ان کا بجٹ اقلیتی طبقے سے 10 گنا زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے صاف ہے کہ اقلیتوں کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ بجٹ کے بارے میں ایک جنرل ہمارا آبزرویشن تو یہ ہے کہ یہ بجٹ غریبوں اور عام آدمی کے لیے کوئی بہت زیادہ راحت کا بجٹ نہیں ہے، بلکہ یہ بجٹ امیروں اور کارپوریٹس کو ہی زیادہ فائدہ پہنچانے کو لے کر فوکس کیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے جب غریبوں کی آپ بات کریں گے، عام لوگوں کی بات کریں گے، تو اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، تو مسلمان بھی اسی طرح متاثر ہوگا جن کی غریبی کی بڑی تعداد ہے۔ دوسرا، جو مائنورٹیز کے لیے اس بجٹ میں جو الگ سے منسٹری آف مائنورٹیز افیئرس کا جو بجٹ ہے، وہ بجٹ پچھلے سال سے بھی کم کیا گیا ہے اور تقریباً 4000 کروڑ بجٹ مختص کیا گیا ہے اس کے لیے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو بجٹ ہے یہ SC/ST کے سب پلان سے، جو کہ 16% SC/ST کا پاپولیشن ہے ملک میں اور مائنورٹیز کا پاپولیشن 21% ہے، جس میں مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مائنورٹیز بھی شامل ہیں۔ 15 دسمبر 2019 کو شہری ترمیمی قانون کی مخالفت میں احتجاج پر پولیس کارروائی کے دوران جامعہ کے ریڈنگ روم کو کافی نقصان پہنچا تھا، لیکن اب اس کی مرمت کے بعد اس ریڈنگ روم کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ جامعہ کی چانسلر نجمہ ہبت اللہ نے ریڈنگ روم کا افتتاح کیا۔ دسمبر 2019 کی رات دہلی پولیس کے ذریعے جامعہ ملیہ اسلامیہ کیمپس کی لائبریری اور اس کے ریڈنگ روم میں مطالعہ کر رہے طلباء پر جم کر لاٹھیاں برسائی گئی تھی، آنسو گیس کے گولے داغے گئے تھے، جس کی وجہ سے ریڈنگ روم کو کافی نقصان پہنچا تھا۔ اس ریڈنگ روم کی مرمت کے بعد جامعہ کی چانسلر نجمہ ہبت اللہ نے طلباء کے لیے ریڈنگ روم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر نجمہ ہبت اللہ نے سعودی فرمانروا شاہ عبداللہ کے ذریعے عطیہ کیے گئے قرآن شریف کے نسخے کو لائبریری کو تحفے میں دیا۔ اس موقع پر نجمہ ہبت اللہ نے کہا کہ انہوں نے اپنی وراثت یونیورسٹی کو سونپ دی ہے۔ نجمہ ہبت اللہ نے جامعہ کے کیمپس میں پولیس کی کارروائی پر خاموشی اختیار کی۔ یہ وراثت مجھے سعودی عربیہ کے کنگ عبداللہ نے دیا تھا، تو میں سوچتی تھی کہ کس جگہ یہ سب سے زیادہ محفوظ رہے گا اور کون لوگ اس کی زیادہ قدر کریں گے۔ قرآن کی تو سبھی قدر کرتے ہیں، مگر جامعہ ملیہ میں اتنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ہر سال آتے ہیں، ہر سال تعداد ان کی بڑھتی جاتی ہے، تو میں نے سوچا کہ میں جامعہ ملیہ کو جامعہ کی وائس چانسلر نجمہ اختر نے کہا کہ پولیس کی کارروائی کے بعد اس لائبریری اور ریڈنگ روم کو کافی نقصان پہنچا تھا۔ وہیں دہلی پولیس پر FIR درج کرنے کو لے کر ساکیت کورٹ کی جانب سے جامعہ کی عرضی خارج کیے جانے پر انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں فیصلہ ایگزیکٹو کونسل کرے گا۔
काफ़ी हमारे पास उसका डिज़ाइन बना हुआ है, बट ज़मीन की ज़रूरत थी तो मैडम ने कहा है कि इन्होंने बात भी की है। हमारे मंत्री से बात नहीं हो पाई थी, चीफ मिनिस्टर से बात, बट बाकी इरिगेशन डिपार्टमेंट में हो गई थी। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, और मेडिकल की तो बहुत ज़रूरत है, और हमें कोरोना ने इसमें हेल्प किया। आज जो रीडिंग रूम का उद्घाटन हुआ है, क्योंकि रीडिंग रूम ही सब ज़्यादा अफेक्टेड था, और रीडिंग रूम बहुत अच्छा सा हो गया हमारा। यूनिवर्सिटी खोले जाने को लेकर भी अभी कुछ साफ नहीं हो पाया है। इस मामले में भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ही फैसला करना है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुरम शहजाद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में तेजी से पैर जमा रही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने योगी हुकूमत पर इल्जामात आयद किए हैं। MIM ने योगी हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि उसको अवामी सतह पर सियासी काम करने से रोका जा रहा है। यूपी MIM का ये भी कहना है कि पार्टी को अवामी जलसे और कॉर्नर मीटिंग करने की इजाजत नहीं दी जा रही। MIM के मकामी जिम्मेदारान का कहना है कि इलाहाबाद और रियासत के दूसरे अजला में CAA और NRC मुखालिफ तहरीक के दौरान बड़े पैमाने पर MIM कारकुनान के खिलाफ पुलिस ने तादीबी कार्रवाइयां की हैं। MIM के मकामी सदर शाह आलम का कहना है कि रियासती हुकूमत अभी तक NRC और CAA मुखालिफ तहरीक में शामिल MIM के कारकुनान को टारगेट बनाकर उनको हरासा करने का काम कर रही है। MIM को काम करने से रोका जाता है, सड़क पे निकलने पर रोका जाता है, और जो ख़ास तौर से भी जो NRC का मामला हम लोगों ने उठाया पूरे यूपी में, उसमें हमारे तमाम लोगों को जो है ज़बरदस्ती मुकदमों में, जबकि हमारा पुरअमन जो है, ख़ास करके इलाहाबाद में बहुत पुरअमन जो है हमारा एहतजाज रहा। इसके बावजूद प्रशासन ने सिर्फ MIM की बुनियाद पर जो टारगेट किया हमारे लोगों को। दिक्कतें हैं, लेकिन कारकुन में हौसला इतना ज़्यादा है कि वो अपना पूरा काम कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू की कोशिशों से रियासत भोपाल के आइमा मौजनीन के चेहरों पर खुशी लौट आई है। वंडर सिस्टम के निफाज के सबब आइमा मौजनीन की 5 माह से रुकी हुई तनख्वाहें अब उनके खातों में पहुंचने लगी है। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के बाद महकमे अक़लियती फलाह बहबूद ने गुज़िश्ता माह 27 जनवरी को अहकाम जारी किया था, मगर कागजी कार्रवाई करने और आइमा मौजनीन के खातों में रकम पहुंचने में 10 दिन लग गए। मसाजिद कमेटी ने न्यूज़ 18 उर्दू का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। मगरबी बंगाल में उर्दू ज़बान को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिए जाने के साथ ममता हुकूमत ने उर्दू ज़बान और अदब की तरक्की में अहम रोल अदा किया है। आज मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी की जानिब से तुलबा में स्कॉलरशिप तकसीम के प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए MPSB ने कहा कि रियासत के अवाम खुश है क्योंकि हमारी हुकूमत ने उर्दू के लिए बहुत कुछ किया है। सारे बंगाल में, सारे देश में ये उर्दू अकेडमी को हम लोग आगे ले जाएंगे, और उर्दू जुबानों पर जो लोग बातें करते हैं वो लोग भी सबसे दिल से खुश हैं, क्योंकि उर्दू सेकेंड लैंग्वेज बन चुका है हमारे बंगाल में। और हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शी लव्स उर्दू, शी लव्स ऑल लैंग्वेज। हिंदी भी पसंद करते हैं, बंगाल भी पसंद करते हैं, लेकिन उर्दू एक साइड में थे, गिरे हो गए, लेकिन उनको बहुत अच्छे से लिख दिया। मारूफ शायरा नुसरत मेहदी को मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी का नया डायरेक्टर बनाया गया है। इससे कबल भी नुसरत मेहदी मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी में बतौर सेक्रेटरी अपनी खिदमात अंजाम दे चुकी है। उर्दू अकेडमी की नई डायरेक्टर नुसरत मेहदी रियासत में मफलूज हो गई। उर्दू सरगर्मियों को लेकर क्या करेंगी, उसको लेकर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने उनसे खास बातचीत की है। आइए देखते हैं। कोरोना कहर में बहुत सारे काम मादूम पड़ गए थे। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी की जो एक्टिविटीज़ थी वो भी बंद सी हो गई थी, लेकिन अब उम्मीद इसलिए की जा रही है कि उर्दू एकेडमी में मध्य प्रदेश हुकूमत ने नुसरत मेहदी साहिबा को फिर से जिम्मेदारी दी है। नुसरत साहिबा आपका इस्तकबाल आप जानना चाहेंगे, जब जिम्मेदारी मिली है तो फिर नए चैलेंजेस भी हैं और काम कहाँ से शुरू? देखिए, एक जो काम है उर्दू एकेडमी के उर्दू ज़बान और अदब की तरक्की तरवीज और फ़रोग़, वो तो होना ही है। हमें नई नस्ल को तैयार करना, और यही काम शुरू किया था, उसी सिरे को फिर से पकड़ना है। इस बार कोशिश ये होगी कि शुरुआत यहाँ से करें कि जो तलाश जौहर हमने शुरू किया था उसमें नस्र निगारों को, अफसाना निगारों को, जो नए लिखने वाले हैं उनको लेकर आएँ, क्योंकि अगर नई नस्ल को हम तैयार नहीं करेंगे तो उर्दू की जो तरसील है वो मुमकिन है ही नहीं। इस ज़रूरत को महसूस कर लिया था, अब वहीं से फिर से शुरू करेंगे, और बाकी जो एक्टिविटीज़ होती रही हैं उर्दू एकेडमी की उनको फिर से शुरू करूँगी।
आपने तो उनकी बात की जो अदब लिखने वाले हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो ज़बान के पढ़ने वाले हैं उन तक किस तरह रसाई हो ज़बान की, जब तक क्योंकि नए पढ़ने वाले कार्य नहीं होंगे तो जो आप लिख रहे हैं या जो बुज़ुर्गों ने लिखा है वो सरमाया कौन पढ़ेगा? उसके लिए भी कोशिश ये हमने की थी उस वक्त में कि जो क्लासेस हम चलाते हैं पूरे मध्य प्रदेश में, अब कोशिश ये कर रहे हैं कि हर ज़िले में एक क्लास शुरू करें उर्दू की, जैसे अभी ग्वालियर, छतरपुर और 2-3 जगह चल रही हैं, इसी तरह से और दूसरे ज़िलों में भी शुरू करें उर्दू की तरफ। जो थोड़ा सा बच्चों का ये हो रहा है कि ये रोज़गार से जुड़ी हुई नहीं है, तो वो हम उनके अंदर पैदा करेंगे और वो ज़रूरतें भी पैदा करेंगे जिससे उर्दू की तरफ लोग आएँ। और सिर्फ इसके लिए रस्मुल ख़त की तरफ भी, ये भी एक क्राइसिस का है मामला कि रस्मुल ख़त की तरफ नहीं जा रहे लोग, शायरी भी खूब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए भी हमारी बहुत सारी कोशिशें अभी शुरू होने वाली हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ जुड़ के सब करेंगे। अकेडमी का जो मकसद है कि ज़बान की तरसील भी और नए कारी इसके पैदा किया जाए, उसके लिए अकेडमी ने अपना खाका तैयार किया है और उम्मीद की जा रही है कि उस पर जल्द ही रंग भरने की अमल शुरू होगा। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। घर पर रह सके 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का रंग जमा दो। जी हाँ, तालीम के जरिए कौम व मिल्लत की बदहाली को खुशहाली में बदलने की नुमाया कोशिश बेंगलुरु के करीब टुमकुर शहर में देखने को मिल रही है। यहाँ की समाजी शख्सियत अफजल शरीफ ने शादी महल तामीर करने के लिए टुमकुर के मज़ाफात में जगह खरीदी थी। शादी महल तामीर करने का मंसूबा भी बना लिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मौजूदा हालात में मुस्लिम मुआशरे को शादी खानों से ज्यादा तालीमी इदारों की जरूरत है, तो उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। ये जगह जो मैं खरीदा था शादी महल बनाने के लिए बनाया था। जब खदीर साहब से मिला और जाके देखा मैं बिदर में, यहाँ पे जो 2-3 कैंपस फिर के, तो मेरा जो ज़हन था बदला। फिर अब यहाँ पे कॉलेज बन गई, तो अभी यहाँ से एक लड़की या पढ़ के जो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो अपने ख़ानदान को खुद जो है वो अपने बलबूते पे उसको सुधार सकती है। मैं इसका ज़रिया ना बनूं कि अपने वालिदैन की पूरी ज़िंदगी की कमाई एक शादी में शादी खाना बना के उसमें खर्च हो जाए, यही एक मेरा सोचना था। कॉलेज में इनामात की तकसीम के लिए मुनक्किदा तकरीब में माहिर तालीम डॉक्टर अब्दुल कदीर और टुमकुर के मेयर फरीदा बेगम ने शिरकत की। सभी ने इस बात पर जोर दिया कि वालिदैन अपने बच्चों की शादी पर फजूल खर्ची से गुरेज करें, आला से आला शादियों के बजाय आला से आला तालीम दिलवाने की फिक्र करें। वो कौम भला कैसे तरक्की करेगी जो अपनी औलाद की तालीम से ज़्यादा उसकी शादी पे खर्च कर देती है। बड़े घर बना रहे हैं और तालीम पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। कम वक्त में, कम मेहनत में, कम खर्च में माशरे में तब्दीली आ सकती है तो वो तालीम के ज़रिए आ सकती है, जबकि जो है बेहतरीन निकाह वो है जिस पे कम खर्च हो। बड़े अफसोस की बात है। तालीम से ही हम माशरे में चेंजेस ला सकते हैं और फजूल खर्ची से बचे। बहुत सादा सा सिंपल निकाह से हम माशरे को आगे ले जा सकते हैं। अल्लाह ताला का करम और बरकत उसी में है। तो एजुकेशन बहुत सारे चेंजेस और रेवोल्यूशन हम ला सकते हैं। ये और इत्तेहाद के साथ साथ हमें एक कौमी का भी हमें प्रेजेंटेशन अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। साल 2018 में कायम इस PU कॉलेज के साइंस और कॉमर्स के शोबे में तकरीबन 250 लड़कियां तालीम पा रही हैं। हिंदू मुस्लिम सभी तबकों की लड़कियां यहां अपना मुस्तकबिल संवारने की कोशिश कर रही हैं। टुमकुर के अफजल शरीफ ने शादी महल के बजाय तालीम का एक खूबसूरत महल तामीर किया है। इसके ज़रिए उन्होंने ये पैगाम दिया है कि आज मुस्लिम समाज को शादी महलों की, आलीशान शादियों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तालीम की अशद ज़रूरत है। जो खर्च शादियों पर सर्फ होता है, यानी बेजा खर्च शादियों पर होता है, उसका इस्तेमाल तालीम पर होना चाहिए। कैमरामैन महेश के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, टुमकुर, कर्नाटक। मरकजी हुकूमत किसानों के हकूक को पामाल कर रही है। मोदी हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी अना को
परे रखकर ज़रिए क़वानीन वापस ले। इन ख्यालात का इजहार वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया रियासत महाराष्ट्र के सदर शेख मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बात करते हुए किया। शेख मोहम्मद सलीम ने कहा कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया पहले ही दिन से किसानों के साथ खड़ी है और मुस्तकबिल में भी पूरी ताकत के साथ ज़रिए क़वानीन की मुखालफत में खड़ी रहेगी। किसानों को हमारी पार्टी का पूरा समर्थन है। जब किसान आंदोलन का पहला और दूसरा दिन था तो दिल्ली से हमारी पार्टी के लोग वहाँ गए थे और उनको समर्थन दिया था। जब वहाँ सिर्फ 1,500-2 हज़ार की भीड़ जमा हुई थी, पहले दिन से हम लोगों ने उनको समर्थन दिया था। अब भी हमारा उनको समर्थन बाकी है। हमारा बोलना ये है कि केंद्रीय सरकार ने जो ये कानून बनाए हैं, ये केंद्रीय सरकार का दायरा कार नहीं है। जो कृषि के कानून होते हैं उनको राज्य सरकार या स्टेट सरकार को बनाना चाहिए। अगर केंद्र सरकार ये बात मान लेगी तो कानून आराम से वो विड्रॉ कर सकती है, कानून को ख़त्म कर सकती है। मालेगांव शहर में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चे की जानिब से ज़रिए क़वानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे किसानों की हिमायत में चक्का जाम किया गया। चक्का जाम मालेगांव शहर के नए बस स्टैंड के सामने किया गया है। इस एहतजाज में जनता दल सेक्युलर कम्युनिस्ट पार्टी के मकामी इकाई के जिम्मेदारान और दीगर मिली और समाजी तंजीमों के अहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर किसानों की हिमायत में नारे लगाए गए। अमरावती जिले में कोरोना मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आज भी 199 कोरोना मरीज पाए गए हैं। 5 माह के बाद एक बार फिर कोरोना अमरावती जिले में जोर पकड़ने लगा है। अमरावती बल्दिया कमिश्नर प्रशांत रोडे ने अवाम से बिला जरूरत घर से बाहर न निकलने की अपील की। अजमेर में 13 फरवरी से शुरू होने वाले उर्स मेले को लेकर जिला इंतजामिया की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी को लेकर आज एडीएम टी गजेंद्र सिंह राठौड़ ने एडीए ओहदेदारों के साथ कायड़ विश्वराम स्थल का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। औरंगाबाद को महाराष्ट्र की सयाहती राजधानी कहा जाता है। तारीखी मकामात और सयाहती मकामात की सैर के लिए मुल्क और दुनिया भर से लोग औरंगाबाद का रुख करते हैं। पिछले साल दिसंबर में ही इन मराकज़ को मरहलावार तरीके से आवाम के लिए खोल दिया गया, लेकिन तकरीबन 2 महीने बाद भी सयाह औरंगाबाद के तारीखी और सयाहती मराकज़ का रुख नहीं कर रहे हैं। गारे अजंता का शुमार दुनिया के अजायब में होता है। पहाड़ों को तराश कर बनाई गई इन गारों को देखने के लिए रोजाना हजारों सयाह आते थे, लेकिन आज वहां वीरानी फैली हुई है। हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन ने अजंता गार के छोटे कारोबारियों के हालात जानने की कोशिश की। इस वक्त हम आलमी शोहरत याफ्ता गारहाए अजंता के व्यू पॉइंट पर खड़े हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं कि गारहाए अजंता का ये मंज़र किस तरह से पहाड़ों को तराश कर गारें बनाई गई है। ये सिर्फ एक गार नहीं है बल्कि कई गारें हैं और आलमी सतह पर ये शाहकार माना जाता है। यहाँ पर तराशीदा जो मुसव्वरी है, यहाँ पर जो फ़नपारे बनाए गए हैं, जिस तरह से मूर्तियाँ बनाई गई है, पहली मर्तबा दुनिया ने देखा कि रंगीन मूर्तियाँ भी क्या होती है। अजंता की गारों में ही ये सारे शाहकार छुपे हुए हैं। लेकिन आज ये सूरत हाल है कि ये आलमी असासा वीरानी का मंज़र पेश कर रहा है। यहाँ पर कोरोना से पहले हज़ारों की तादाद में सयाह आते थे और यहाँ का लुत्फ़ उठाते थे, तारीख़ी आसार को देखते थे, लेकिन आज वीरानी का मंज़र है। यहाँ पे कारोबार करने वाले अमोल हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ बदला है। जी अमोल। पहले 1001 पब्लिक आई थी सर। अच्छा, हाँ, कोरोना से पहले से। तुम क्या करते हो यहाँ पे? पानी बोलो, पूरा बोलो। नींबू पानी बेचता सर, पानी बोतल पब्लिक आती है सर, पानी रहता नहीं। तो ये कारोबार कब से कर रहे तुम और तुमको क्या रिस्पांस मिलता था कोरोना से पहले? कोरोना से पहले सर 1200 रुपये कमाता। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम पर हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।
ٹی وی پر پہلی بار آ رہا ہے ایک انوکھا شو، نیٹ ورک 18 کی ایک خاص پیشکش بائیجوز ینگ جینیسز۔ 6 فروری کو رات 9 بجے نیوز 18 اردو پر دیکھیے اوڈیسی ڈانس کی ونڈر کڈ شرینکا کو۔ یہ ہے ینگ جینیس، جب یہ تھرکتی ہے تو دنیا اس کے طلسم میں بندھ جاتی ہے۔ یہ ہے ینگ جینیس جسے اوڈیشی ڈانس کی ونڈر کڈ کا نام ملا ہے۔ جو انڈیا انٹرنیشنل ڈانس فیسٹیول کے منچ پر اتری تو لوگ حیران رہ گئے۔ یہ ہے ینگ جینیس جو صرف 10 سال کی عمر میں کئی دیشوں میں ان گنت فین بنا چکی ہے، جو صرف 4 سال کی عمر میں اوڈیشی پرتیبھا کا خطاب جیت چکی ہے۔ نیٹ ورک 18 پر ایک انوکھا شو، دنگ کرنے والی بنگلور کی شرینکا پروہت کے ساتھ۔ میرا نام شرینکا ہے، میں 10 سال کی ہوں، میں ایک اوڈیسی کلاسیکل ڈانسر ہوں اینڈ آئی ایم فرام بنگلور۔ جو انٹرنیشنل منچ پر بھارت کی طرف سے ڈانس کرنے والی سب سے چھوٹی عمر کی ڈانسرز میں سے ایک ہے، جو سنگاپور، جاپان اور امریکہ میں ڈانس شو کر کے دھوم مچا چکی ہے۔ اوڈیسی ایک بہت گریسفل اور بیوٹیفل ڈانس فارم ہے۔ مجھے اوڈیسی کو اونچائی پر لے کے جانا ہے اور مجھے بھی ایک بہت فائن اوڈیسی ڈانسر بننا ہے، جس کا گھر اور گھرانہ ہی اوڈیشی ڈانس میں رچا بسا ہے، جو اپنی ماں کے ساتھ منچ پر مدرائیں بناتی ہے تو الوکک ماحول بن جاتا ہے، جس نے 4 سال کی عمر سے خطاب جیتنے شروع کیے، جو نہ صرف اپنی ماں بلکہ اپنی دادی سے بھی نرتیہ کی باریکیاں سیکھتی رہی۔ آ رہی ہے یہ ینگ جینیس۔ پچھلے سال انتقال کر جانے والے کرناٹک کے استاد شاعر اسد اللہ خان اسد اعجاز کی یاد میں مشاعرہ منعقد ہوا۔ بنگلورو کے زمزم شادی محل میں منعقدہ مشاعرے کی افتتاحی تقریب میں اسد اعجاز کی شاعری اور ادبی خدمات پر روشنی ڈالی گئی۔ اردو زبان و ادب کے مسائل پر بھی گفتگو ہوئی۔ اردو زبان کے لیے مسلم سیاسی لیڈروں کی خاموشی پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا۔ روزنامہ پاسبان کے ایڈیٹر عبید اللہ شریف نے اس تقریب کی صدارت کی، جبکہ مبین منور اور معروف شاعر شفیق آبدی نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ معروف شعراء مبین منور اور شفیق آبدی نے نظامت کی۔ پہلے تو میں گزارش کروں گا ہم سب اپنے لیے دعا ہمارے جو آج مخالف پڑھے گئے حضرت اعجاز صاحب کے تعلق سے کافی تحقیق کر کے ان لوگوں نے لکھا تھا، جو بھی بزرگ شعراء ہمارے گزرے ہیں ان کے تعلق سے اگر کوئی بھی ریسرچ کر کے ان کے تعلق سے ان کی شخصیات کو ان کے کلام کو لا کر دیں تو ہمیں اسے شائع کرنے میں جو ہے میں پوری مدد کروں گا۔ چونکہ وہ ہمارے استاد تھے، ہمارا پہلا حق بنتا تھا کہ ہم ہمارے استاد کے اس میں کریں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہر 2 مہینے 3 مہینے میں اگرچہ کسی پر کرنا ہے تو کریں گے۔ اردو اکیڈمی کے علاوہ جتنے اکیڈمیاں ہیں آپ دیکھیے بالکل سرگرم ہیں، ان کے جو سیاسی قائدین ہیں مستقل ان کا تعاون کرتے ہیں، ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور جتنا کچھ سینکشن ہوتا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچا کر حکومت کو دیتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت امانت دار ہیں، وفادار ہیں۔ جب تک ہم بزرگوں کو یاد نہیں کریں گے تو نئی نسل کو پروان نہیں چڑھا پائیں گے، اس لیے کہ ماضی سے حال اور حال سے مستقبل منسلک ہوتا ہے۔ جس کا ماضی روشن ہوتا ہے وہ حال کو بھی روشن کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جس کا حال روشن ہوتا ہے وہ مستقبل کی تابناکی پر سوچنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ سبق ماضی سے سیکھو، یہ ہمیشہ کام آتا ہے۔ کماں کھینچتی ہے جتنی تیر اتنی دور جاتا ہے۔ دیکھیے کماں کھینچنے کی ضرورت ہے آج ماضی کی طرف۔ ناظرین، خاص بات انڈیا میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ رخ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ news18urdu.com پر۔ آداب۔